A very good evening, ladies and gentlemen. I welcome you all to the Udbodhan Series 4. So, without wasting much more time, let us start. Beginning with our very first artist, Sanghamitra Chakravarti. Music was introduced by her mother since childhood at the age of 3 by 4. Started her initial training under Muhammad Yunus Ali Khan, who was a disciple of late Ustad Munawar Ali Khan of Patiala Gharana. She was chosen to be Ganda Bandha, a sacred ceremony between the guru and pupil, and the pupil is accepted as a child or a close associate of the guru. Later on, she received training under late Vidushi Meera Bandyopadhyay, who herself was the foremost disciple of late Ustad Bade Ghulam Ali Khan of Patiala Gharana. She is working under the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India as a vocalist since 20 years and has participated in various festivals and cultural events across the country and has received several honors and appreciations in this field. She is also associated with various cultural organizations. She now trains students in music and is the founder of an organization named Vanishri, which is dedicated to spread and promote Indian classical music and literature. Presently, she is undergoing her research on Vedanta and spirituality in Hindustani classical music vocal. So, ladies and gentlemen, please welcome Sanghamitra Chakravarti. And accompanying her is the tabla artist Shri Akshay Biswas, who is the disciple of Guru Pradeep Chaudhary. So let us welcome them. Namaskar. I am very happy that Nityanjali Sai Foundation is organizing a music online festival program, and which has been hosted by Nityanjali Sai Foundation, and I am thankful to Mausumi Basuji. She is a founder of Nityanjali and she is a teacher there. So my best wishes for them, and I'm very happy to perform here today uh, in this program of Nityanjali. I'll be starting with one Bhimpalashi, Rag Bhimpalashi, Madhyalay Tintal, and today we are happy that Sri Akshay Bishwas ji is playing tabla with me here. So Rag Bhimpalashi, Madhyalay Tintal.
सबको मालूम है और कुछ ही दिन पहले हमारे संगीत जगत में और सारे विश्व में एक अंधकार छा गया। हमारे बीच के हमारे भारत के महान कलाकार पंडित बिरजू महाराज जी का देहावसान हुआ। वो पंच तत्वों में विलीन हो गए। तो आज अभी ये भजन गा रही हूँ। एक भजन प्रस्तुत है। महाराज जी केवल नर्तक नहीं थे। He was equivalently a vocalist, he was equivalently a percussionist, an instrumentalist, and of course a great dancer. तो ये मुझे अपने जीवन में एक बार, मेरे ख्याल आज से 10 बरस पहले की बात है, I was working as a musician in Maharaj's troupe, as a vocalist. तो जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम रहता था मैं गाती थी महाराज जी के साथ और उनके शिष्यों के साथ में। ये उसी समय में गाते समय ये भजन है, सावरा गिरधर मोरे मन भावे रे, महाराज जी की रचना है ये। और ये मैं आज एज अ ट्रिब्यूट टू पंडित बिरजू महाराज ये मैं आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
Now let's move on to a disciple of legendary tabla maestro Pandit Shankar Ghosh, who completed masters from Vishwabharati University, Shantiniketan, and is currently working as a tabla staff artist at University of Delhi under Faculty of Music and Fine Arts. Ladies and gentlemen, please welcome Sri Ranjit Biswas. नमस्कार। नृत्यांजलि साई फाउंडेशन हमें ये मौका दिया है थोड़ा तबला सोलो बजाने के लिए। तो आज मैं थोड़ा सा सोलो बजाएंगे और मेरा साथ हारमोनियम में संगत दे रहा है मेरा बेटी रितिका। ज़िंदगी का पहले बार ये कर रहा है, जस्ट ट्राई। तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। और हमें इनवाइट करने के लिए मैं मौसमी बासु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मौसमी बासु, शी इज़ ए कथक डांसर एंड डिसाइपल ऑफ कथक गुरु अफसर मौला एंड पद्मश्री सोमना नारायण जी। तो इजाज़त दीजिए, थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ। मेरा गुरुजी पंडित शंकर घोष जी को प्रणाम करके आप लोगों से अनुमति लेके थोड़ा सा ट्राई करता हूँ।
धातेटे धातेटे। मेरा घराना फर्रुखाबाद है, तो इतना हम लोग ये धातेटे धातेटे कम बजाते हैं, तो हमारा जो है वो भी मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन दिल्ली से ही सबको पता है कि तबला का सारे मेन जो उत्पत्ति का जगह है वो दिल्ली है, इसलिए दिल्ली का चीज़ थोड़ा सा बजाना ही पड़ता है। तो फर्रुखाबाद में इसी का पैटर्न में एक कायदा है, वो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। धा घे घे तेटे घेन्ना थुन्ना केन्ना ता के तेटे घेन्ना धिन्ना घेन्ना धा घे तेटे घेन्ना थुन्ना केन्ना ता के तेटे घेन्ना धिन्ना घेन्ना धा घे तेटे घेन्ना ता के तेटे घेन्ना धिन्ना घेन्ना धा तेटे तेटे घेन्ना धाग थुन्ना केन्ना ता के तेटे घेन्ना थुन्ना केन्ना। सभी थोड़ा थोड़ा बजा रहा हूँ। फर्रुखाबाद का एक चलन से कायदा पैटर्न आ गया।
का एक लखनऊ का चलन, वो भी मैं थोड़ा सा बजा रहा हूँ। थोड़ा सा द्रुत, थोड़ा सा टुकड़ा चक्रधार बजा के, टाइम मेरे को बोला गया था 20 मिनट्स, तो मैं थोड़ा सा अभी द्रुत लय में कुछ बजाने का ट्राई कर रहा हूँ।
थोड़ा सा जस्ट ट्राई किया। थैंक यू। And the maestro, Pandit Vijay Shankar Mishra. Pandit Vijay Shankar Mishra was born in a family of illustrious musicians in the holy city of Benares. He is the heir to a musical legacy which has been passed on from one generation to the another in an unbroken tradition over the past 300 years. His family has gifted the world many renowned artists of national and international stature. He has learned tabla from his father, Shrimani Pandit Gama Maharaj. Pandit Mishra has been actively involved in grooming discerning disciples since 1977. He is associated as an examiner for MA and PhD, standard with institutions like Gandhavara Mahavidyalaya, Prayag Sangeet Samiti, and many more. Pandit Mishra has received the coveted fellowship, junior and senior, offered by the Ministry of Human Resource Development, Government of India. He has also been called upon to act as the subject specialist for various educational programs produced by NCRT for Doordarshan. A prolific writer, Pandit Mishra has written over 5,000 articles for almost every national Hindi daily, All India Radio and Doordarshan. Many of these have shed light on crucial, controversial, and untouched topics of immense importance and relevance. Not only this, Pandit Mishra's illustrated life sketch has been published in eminent works such as Talkosh and Tal Darshan Manjari, and many more. Pandit Vijay Shankar Mishra has carved a niche for himself as a venerated musicologist. He is writer, producer, and director of 13 episodes radio serial Tabla Ka Janm और उसकी विकास यात्रा. And also, Pandit Ji has won many awards. Amongst them, the prominent most are Global Excellence Award by Asian Academy of Art, Noida, and he is also honored by former HRD Minister Mrs. Smriti Irani. So, ladies and gentlemen, please welcome Pandit Vijay Shankar Mishra. सर्वप्रथम हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका गुरु के महत्व का अभी आज के टाइम में क्या मतलब उनका महत्व रह गया है, तो आप थोड़ा उस पे बताइए। नमस्कार। मुझे लगता है कि अब संगीत और नृत्य यही दो ऐसी विधाएं बची हैं जिनमें गुरु का महत्व रह गया है। बाकी विधाओं के लिए तो लोग किताबों का सहारा ले लेते हैं, इंटरनेट का सहारा ले लेते हैं, बहुत सारे सहारे हैं, लेकिन संगीत और नृत्य ऐसी विधाएं हैं जो अभी भी पूरी तरह, जिसे न तो लिखा जा सकता है और न तो बोलकर बताया जा सकता है। इसलिए अभी भी हमारी सांगीतिक कलाओं में गुरु के चरण छूने का महत्व बना हुआ है, और चाहे किसी धर्म, किसी जाति का व्यक्ति हो, गुरु पूर्णिमा, गुरु पर्व और बसंत पंचमी, माँ सरस्वती के पूजा का दिन जरूर सेलिब्रेट करता है। गुरु पूर्णिमा हम जिस दिन मनाते हैं उस दिन वेद व्यास का जन्म हुआ था। जिस तरह हम टीचर्स डे मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पे, उनके जन्मदिन पे, उसी तरह गुरु पूर्णिमा हम मनाते हैं वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी थी, उनके जन्म के दिन गुरु पूर्णिमा मनाने की परिपाटी आई है। और संगीत में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे न चार तरह से बजते हैं। तबले की मैं बात करूं, अगर न चार तरह से बजते हैं, अब कहां किस न का प्रयोग करना है ये गुरु ही बता सकता है, ये आपको किताबें नहीं बता सकती हैं,
ये आपको गूगल नहीं बता सकता है। तो गुरु का महत्व इस तरह से बहुत जगह है। हम जैसे बहुत सारे बोल ऐसे हैं कि आज ही जैसे हम बता रहे थे किसी को कि एक शब्द आता है तक्का, डांस में भी उपयोग होता है तक्का। अब तक्का बजेगा कैसे? तो तक्का जब बजता है तो तक्का नहीं बजता है, कत्ता बजता है। अब जिसने गुरु से नहीं सीखा है वो तो तक्का बजाने की सोचेगा, जबकि वहां बजता है कत्ता। कथक नृत्य का ही एक शब्द है तकिट तका, तकिट तका आधा तटकत गदिकर, ऐसा बहुत जगह आता है। अब ये तकिट तका भले ही कथक नृत्य में भी उपयोग होता है, भले ही तबले में भी उपयोग होता है, लेकिन ये शब्द आया है पखावज से। और ये जब पखावज से आया है तो पखावज के बोल जब दूसरी विधाओं पर बजते हैं तो उनका निकास चेंज हो जाता है। तो तकिट तका जब कोई नाचता है या हमको बजाने को कहा जाता है तो हम तकिट तका नहीं बजाते हैं, क्योंकि उसका निकास मुश्किल पड़ता है। ये पखावज के लिए ही उपयोगी है। हम तकिट तका की जगह कतिट कता बजाते हैं। कतिट कता, उसका साउंड एक अलग तरह से आता है। या आपके कथक नृत्य के संदर्भ में बात करूं, कृतक धुन धुन आती था। अब धुन या धतक थुंगा, धुन जो है ऐसा लगता है कि तबला और बाया मिला के धुन बजेगा, लेकिन ये धुन केवल बाया पर बजता है, दाएं का उसमें रोल ही नहीं है। और ग जो बाएं पर बजता है वो तबले पर थाप के अनुसार बजता है, थाप के रूप में। थुंग बाएं पर खुला थुंग, और गा जो है दाहिने तबले पर था गा, इस तरह से। तो मैंने कथक केंद्र में भी एक बार एक हुआ था, सेमिनार हुआ था, तो उसमें मैंने बोला था तो निकास पे। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको गुरु के पास बैठकर ही मिलेगी। अब इंटरनेट का जमाना है और इस लॉकडाउन ने, कोरोना ने लोगों को इंटरनेट यूज करने का ज्यादा आदी बना दिया है। तो हर चीज लोग इंटरनेट से ढूंढने की और उस पर सर्च करके उसे सीखने की कोशिश करते हैं। अक्सर आप अपने बहुत पुराने लोगों से पूछोगे, आप बहुत बड़ी परंपरा के हो मुझे मालूम है, अपने पिताजी से आप पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे हमारे संगीत में एक शब्द बहुत पहले प्रचलित था, अताई। अताई शब्द बहुत पहले प्रचलित था। अताई उसको कहते थे जो गाना बजाना नाचना तो बहुत अच्छा करता था, उसमें कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा बजाते थे, बहुत अच्छा नाचते थे, लेकिन वो सिस्टमैटिक नहीं होते थे। तो कहाँ किसका उपयोग करना चाहिए? अब किसी विलंबित गत किसी सितारिये ने शुरू किया, सरोदिये ने विलंबित गत शुरू किया और तबलिया अठगुन का तिहाई लेकर आ गया, तो लोग कहते थे ये अताई है। इसको नहीं मालूम है कि विलंबित गत के साथ विलंबित लय के ही बोल, विलंबित लय से ही बोल भरना चाहिए। तो तैयार है, बहुत बढ़िया बजाता है, लेकिन इसको टेक्निक नहीं मालूम, सिस्टम नहीं मालूम है। अब सचिन तेंदुलकर हमारे यहाँ आज भी महान बल्लेबाज माने जाते हैं, क्रिकेटर माने जाते हैं। कई बार वो 99 पर आउट हुए हैं, कई बार वो 0 पर आउट हुए हैं, फिर भी वो महान माने जाते हैं, इसलिए कि वो जो क्रिकेट खेलते थे वो सिस्टम के अकॉर्डिंग खेलते थे। कई बार होता था कि एम्पायर उनको आउट नहीं देता था और वो खुद मुड़ जाते थे अपने रूम की तरफ, क्रीज को छोड़ देते थे। तो ये जो चीजें होती हैं, ये गुरु ही आपको बताता है कि कहाँ आप सही हैं, कहाँ आप गलत हैं। तो इंटरनेट या गूगल से संगीत को नहीं सीखा जा सकता, सुना जा सकता है। जैसे आपने तिलक का आमोद राग सीख लिया, बहुत अच्छी तरह से सीख लिया, तो आपने 10 कलाकारों का सुना वहां पर कि कौन किस तरह से उसको अप्लाई कर रहा है, कौन किस तरह से उसकी प्रस्तुति कर रहा है। लेकिन उसके लिए इतना ज्ञान आपको होना चाहिए कि आप ये भी डिसाइड कर सके कि अरे नहीं, ये तो गलत गा रहे हैं, इनको हमको फॉलो नहीं करना है, या इनकी रागदारी शुद्ध नहीं है, ये हमको फॉलो नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आपको गुरु ही बताएंगे। अब कुछ ऐसी समस्याएं हुई हैं, पहले तो
गुरु के घर में ही रहकर शिष्य सीखते थे और बेटे की तरह रहते थे और सारा कुछ होता था। लेकिन बदलते माहौल ने गुरुओं के सामने भी समस्या खड़ी कर दी है। अब उनके लिए मुश्किल हो गया है कि हर शिष्य को घर में रखकर खिला पिला कर फ्री में सिखा दो। गुरु के लिए भी मुश्किल हो गया है, तो वो भी थोड़ा सा पैसे की तरफ ध्यान देने लगे हैं और शिष्य लोग भी थोड़ा सा इस तरफ ज्यादा सतर्क हो गए हैं कि अच्छा गुरु को जितना पे कर रहे हैं उससे कुछ ज्यादा हमको मिल रहा है या नहीं। शिष्य भी ये नहीं सोचता है कि हम समर्पण करें, तो वो ये सोचता है कि हम जितना दे रहे हैं, अगर हमने एक क्लास का गुरु को 200 रुपया दिया तो कम से कम 250 रुपए का सबक तो सीख ही ले। लेकिन वो सबक जो है 250 रुपए या 300 रुपए का नहीं होता है। वो तो चीजें ऐसी होती हैं कि अनोखे लाल जी ने धारा तेटे धारा तुन्ना बजाया है, उनकी एक रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। सारे बच्चे बजाते हैं, सारी किताबों में है, लेकिन वो धारा तेटे धारा तुन्ना उन्होंने ऐसा बजाया है, या नादिन निन्ना सभी नाचते हैं, सभी बजाते हैं, ऐसा बजाया कि उसके लिए वो अमर हो गए, जर्जर कीर्तक के लिए अमर हो गए। तो ये गुरु की कृपावश, गुरु के साधना वश होती है। मैं बात कर रहा था कि हम लोग सीखना भी चाहते हैं, तो हम लोगों के समय में अक्सर आपके यहाँ भी रहा होगा कि गुरु के घर में भी जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, और कुछ नहीं है तो आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ, तो एक बीड़ा पान लेकर, कुछ फूल लेकर, अगरबत्ती लेके, मतलब कुछ भी लेकर गुरु के यहाँ जाते हैं। गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं आते। तो मेरी किसी से बात हो रही थी कि आप उस दिन जब बोलेंगे तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने कहा कि बिना गुरु दक्षिणा दिए प्राप्त की हुई विद्या काम नहीं आती है, और गुरु का, डॉक्टर का, इन लोगों का ऋण कभी नहीं बाकी रखना चाहिए। और चूंकि बात चली है तो मैं ऐसे बता देता हूँ कि हम सब लोग, आप भी, हम भी, सभी लोग 2 साल से तो घर में बैठे हुए हैं। हम लोग जो फ्रीलांस काम करने वाले हैं, हम लोगों को तो कोई भी प्रोग्राम नहीं हो रहा है, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, और कोई हम लोगों को सरकारी सहायता भी इस तरह से नहीं मिली है। लेकिन हर महीने में 3-4 जगह बोलना पड़ रहा है। आज मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, कल सुबह 11:30 बजे मुझे सुभारती विश्वविद्यालय के लिए बोलना है। उसके अलावा अभी 19 और 20 तारीख को मैंने बोला है ऑनलाइन। लेकिन ये सारा बोलना जो है वो फ्री होता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, छोटी संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, उन लोगों ने भी हम लोगों से जो 1.5 घंटे का लेक्चर करवाया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया। लोग ये समझते हैं कि ये घर में बैठ के बोल रहे हैं तो इसमें तो कोई मेहनत नहीं है। अरे भाई, मेहनत तो है। 1.5 घंटा बोलने के लिए हमको 5 घंटे का तैयार करना पड़ता है स्क्रिप्ट। जब आप 1 घंटा कहीं नाचते हैं तो उसके लिए महीना भर 4-4 घंटा रोज रियाज करते हैं। ये नहीं है कि 1 घंटा रियाज किया और 1 घंटा जाके आदमी नाच देगा। तो ये जो सारी चीजें हैं आज के यंग जनरेशन को समझनी चाहिए। जो लोग व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उन लोगों को समझना चाहिए। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ बिरजू महाराज जी की डेथ हुई है। पिछले साल उन्होंने वो बसंत उत्सव नाम से एक प्रोग्राम कराते थे, तो पिछले साल वो ऑनलाइन हुआ था। तो सरस्वती जी का मेरे पास फोन आया था कि विजय भाई, हम चाहते हैं कि आपके कुछ स्टूडेंट उसमें भाग लें ऑनलाइन, और रिकॉर्डिंग भेजनी थी। हमने भेजी रिकॉर्डिंग, और बाद में महाराज जी ने आशीर्वाद स्वरूप कुछ पैसे भेजे मुझे, बोले कि ये आशीर्वाद है। ये अलग बात है कि वो पैसे मैंने उन शिष्यों को दिया जिन्होंने उनमें परफॉर्म किया था, क्योंकि मेरा तो केवल डायरेक्शन था। जिन शिष्यों ने परफॉर्म किया, मैंने चारों के अकाउंट में वो पैसे भेज दिए। 3 ने बजाया था, 1 ने नगमा दिया था। तो ये जो चीजें हैं, ये थोड़े से सोचने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि गुरु वाली बात ठीक है। और देखिए, एक बात मैं और कहता हूँ, बेदम तिहाइयों की बात होती है। तो
मेरे बड़े भाई प्रोफेसर रंगनाथ मिश्र थे, आप लोग शायद जानते होंगे। भातखंडे यूनिवर्सिटी लखनऊ में 24 साल तक वो तबले के प्रोफेसर रहे, और सिरकुआ खान साहब के रिटायरमेंट के बाद उनको वो जॉब मिली थी। तो बेदम तिहाई के विषय में वो एक अलग बात कहते थे धा गुरु अक्षर है। तो धा पर एक स्वाभाविक दम होगा ही होगा, उसको आप कम नहीं कर सकते। तो गुरु का एक वजन होता है, ये बात गुरुओं को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल शिष्य की तरफ से ही गलती हुई है, गलतियां गुरुओं की तरफ से भी हुई हैं, और ये सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा बस इस बात का ध्यान रखें युवा पीढ़ी की, संगीत और नृत्य को आप लिखकर पढ़कर, मेरी एक किताब है रेयर कंपोजिशंस ऑफ द ग्रेट मास्टर्स, तो उसमें तबले की बंदिशें हैं पुराने उस्तादों की। उसमें भी मैंने लिखा है कि केवल इस किताब को पढ़ने से नहीं होगा, इसको समझने के लिए कम से कम 7 साल 8 साल आपको गुरु के पास सीख कर आना होगा, तब इस किताब के बोलों को आप समझ पाएंगे कि वो मतलब कैसे निकलेगा और कैसे बजेगा। मेरे पिताजी कहते थे बोलों का भी उठना बैठना होता है, बोल कैसे उठता है कैसे बैठता है। ये जो बोल का चाल है उसको आप किताब में पढ़ के कैसे करेंगे। गी तिरिकिट तकता कहता गी दिन नगदेत कहता गिन तड़ान, तो मर गया। तो ये चीजें हैं, तो कैसे वो निकलता है। आप लोग हालांकि आप जयपुर घराने के हैं, लेकिन लखनऊ घराने की एक बंदिश है कृतक तुम नाते किताब, वो आप लोगों को याद है, मुझे मालूम है। उसका एक जोड़ा सुनाता हूँ, ये मेरे दादाजी की कंपोजिशन है। दा दिन्ना ना दिन दिन्ना ना तीन तिन्ना लिखित दादिन तक दादिन तक रे दादिन तक दादिन तक रे दादिन तक कट तुंगा ततुंगा तुम दादिन तक दागित तक तक दिन तक तक तिजाकत कट दिन तक तक तिजाकत कट दिन तक तक तिजाकत। ये कृतक तुम का जोड़ा होने के बावजूद उसका नकल नहीं है, लय थोड़ा कम करके बोलते हैं। कृतक तुम नाते ता दादिन तक दादिन तक ते दादिन तक ते दादिन तक कर दे दादिन तक ते दा तो उनका दा ते दा तो उनका दा ते दा तो उनका दा दिन्ना ना तीन तिन्ना लिखित दादिन तक कर दे दादिन तक ते दादिन तक कर दे दादिन तक कृतक तुंगा अत्ता तुंगा तुम तरण दादिन तक जागे ते तागे ते कृतक दिन तक ते ता तिदा कत कृतक दिन तक ते दा तिदा कत कृतक दिन तक ते दा तिदा कत। ये है। अब रूपक की तिहाई है, तीती ना धीना धीना तीती ना धीना धीना तीती ना धीना धीना, ये रूपक की तिहाई है। तीती ना धीना धीना तीती ना धीना धीना तीती ना धीना धीना। अब आपने वाह कर दिया, हम स्टूडेंट को बताएंगे तो कैसे बताते हैं। तीती ना धीना धीना 1 2 3 4 तीती ना धीना धीना 1 2 3 4 तीती ना धीना धीना, और जहां ये 1 2 3 4 लगाया तहां उसका सौंदर्य खत्म हो गया। ठीक है ना। तो ये जो हाँ, तो वो लोग क्या करते थे, जीना जीना जीना, ये यूं गर्दन हिला देते थे, उसमें समझ में आ जाता था कि ये मतलब इतना गैप है, गर्दन हिलाने वाला गैप है। तो ये तो उस समय की टेक्निक ये थी। और ये भी था कि एक बार धा में बजा रहा था, ये मेरी उंगली दिख रही हो ऐसे, तो ये थोड़ी सी ऐसे खुल जा रही थी ऐसे, और बाबूजी के हाथ में कुछ दर्द था। तो उस समय वो दाल हल निकालने के लिए कलछुल जैसा एक चीज हुआ करता था, पीतल का बनता था, बड़ा सा चम्मच जैसे, ऐसे अंदर उसमें कि दाल भरा जा सके। और वो उस समय बर्तन पीतल के बनते थे, हेवी बनते थे। तो उसमें सरसों का तेल गरम करके वो ऐसे हाथ पे ऐसे लगा रहे थे, और मैं बता रहा था और बजा रहा था, उंगली गलत हो रही थी, वही उठा के मार दिया हाथ पे। अब उसका वजन कम से कम 2-2.5 किलो का, मतलब पुराने बर्तन बहुत हेवी होते थे, तो स्टील के बर्तनों का प्रचलन नहीं चला था। तो ये भी होता था। और अभी हमारा एक स्टूडेंट, उसकी माँ ने उसको कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, गुरुजी इतना डांटते हैं तुम्हारी गलतियों के लिए। तो मुंह बना के कह रहा है मुझे तो डांटी पड़ती है ना, तो गुरुजी की तो पिटाई भी हुई है, अपनी माँ को बोला उसने। तो
छोटा बच्चा है 11-12 साल का। तो उसकी माँ ने पूछा तुम्हें कैसे पता? तो कई गुरुजी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे। अब हुआ ये कि प्रोग्राम छोटा था मैम, तो बाबूजी बगल में बैठते थे मेरे साथ। तो मैं बैठा, एक दिन पहले कोई बोल बता दिया उन्होंने, एक दिन पहले या दिन में ही बताया शाम को ये बजा लेना, इस बोल से एंड करना। अब वो बजाने लगा, जब मैं सारा प्रोग्राम बढ़िया हो गया, अब इस बोल से एंड करना, और वही बोल मैं थोड़ा सा कहीं से भूल गया। जब भूल गया तो उन्होंने आंख तरेर के, अच्छा सम पे आ गया। ये एक अच्छी बात रही कि भूलने के बावजूद मैं सम पे आ गया, तो लोगों को पता नहीं लगा कि गलत हो गया, सम पे आ गया मैं। तो लेकिन उन्होंने आंख तरेर के कहा फिर से। अब जब उन्होंने फिर से कहा तो जो थोड़ा बहुत याद था वो भी मैं भूल गया। तो दूसरी बार तो सम पे लड़खड़ाता हुआ आया, पिछली बार तो सही सम पे आ गया था, दूसरी बार लड़खड़ाता हुआ सम पर आया, और वही में थप्पड़ पड़ा स्टेज पे ही मेरे ऊपर। तो स्टेज पर ही हुई थप्पड़ पड़ा, लोगों ने आके पकड़ लिया जो हारमोनियम बजा रहे थे, अरे अरे क्या कर रहे हैं, लड़के ने इतना अच्छा बजाया। और उस समय 2-2 4-4 रुपए इनाम देने का भी होता था, 200-300 रुपए इनाम के भी सामने पड़े हुए थे सब, लेकिन स्टेज पर ही पिटाई हुई। अब आज आप बच्चों को डांट भी नहीं सकते, तो उनको कुछ कर नहीं सकते, तो बच्चे भी उसी तरह लापरवाही से ले रहे हैं। तो पुरानी टेक्निक ये भी मतलब ऐसे ऐसे भी चलती है। तो हम लोगों ने वैसे ही सीखा है, मार खा खा के सीखा है और ऐसे करके, लेकिन वही है कि इतना सिखा दिया कि इज्जत से जी रहे हैं, और आप जैसे गुणी लोगों के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। तो और कुछ तने उसमें जी कहा नहीं, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि पंडित जी हमारे सामने इस तरह से बात करेंगे, कभी सोचा भी नहीं था हम लोगों ने। अच्छा बताइए आगे आगे का क्या सवाल है आपका? आगे का तो एक वही था कि ताल के 10 प्राण एक संक्षिप्त में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए ताल जो है वो संगीत में समय नापने की विधि है। हम संगीत नृत्य में जो समय व्यतीत करते हैं तो उसको मापते हैं हम ताल के माध्यम से। और भरतनाट्य शास्त्र में ताल के 10 प्राण का उल्लेख हुआ है। काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार। मैं ये मानता हूं कि प्राण तो एक ही होना चाहिए, तो अगर इसका नाम हम ताल के 10 तत्व ऐसे करें तो शायद ज्यादा उचित होगा। और क्या होता है कि जब जो चीज लिखी जाती है तब उसका अलग ढंग का महत्व होता है। भरतनाट्य शास्त्र आज से 2100 साल पहले लिखी गई, 2000 साल से ज्यादा हो गया, तब उसका वो अलग रूप था। और इन 2100 सालों में बहुत कुछ हमारे संगीत में बदलाव भी तो हुआ। जैसे हम जातियां कह लें तो पहले सिर्फ 2 जातियां होती थी, तीसरा चतुस्थ, आज हम 5 जातियां मानते हैं। यति की बात कर लें तो पहले सिर्फ 3 यति होती थी, समा, श्रोतावाह और गोपुच्छा। आज उसमें मृदंगा और पिपीलिका भी जुड़ गया है। तो इस तरह से चीजें बदलती रहती हैं। तो एक तो मैं ये चाहूंगा कि इसको ताल के 10 तत्व कहें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। और ये मैं 10 प्राणों के विषय में भी कुछ बताऊं क्या? क्या चाहती हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा थोड़ा पहला करके है बता इसमें, दीजिए। हाँ पहला है इसमें काल। काल का अर्थ है समय। तो पहले मात्रा से अंतिम मात्रा तक, मतलब एक आवर्तन में जो समय लगता है उसको काल कहते हैं। अब मात्रा वगैरह को मापने का उस समय एक अलग हिसाब था। कमल के 100 पत्तों को एक ऊपर एक रखो, उसमें सुई से छेद करो, फिर उसमें जितना समय लगता है उसको एक क्षण कहो, और फिर उससे उसका विस्तार होता था। अब मुझे लगता है कि आज इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास इतने
अत्याधुनिक मशीनें हैं कि सेकंड के 100वें हिस्से को भी हम नाप सकते हैं। हम स्पोर्ट्स वगैरह में देखते हैं, ओलंपिक वगैरह में, कि मतलब सेकंड के अंदर भी जो अंतर होता है उससे विजेता को घोषित किया जाता है। तो काल को नापने के लिए आज हमारे पास घड़ी है, बहुत सारी मशीनें हैं, हम उनको देख सकते हैं। दूसरा है मार्ग। मार्ग का अर्थ है रास्ता। पहली मात्रा से अंतिम मात्रा तक ताल कैसे जाता है, उसके विभाग क्या हैं, उसकी ताली क्या है, उसके खाली क्या है, उसके छंद क्या है, उसको हम मार्ग कहा गया है। तो प्राचीन काल में ध्रुव, चित्र, वर्तिका और दक्षिण, ये 4 मार्ग माने जाते थे। आप कर्नाटक म्यूजिक में अभी भी आप देखेंगे कि वो जब ताली बजाते हैं तो ताली बजाए, फिर मात्रा ऐसे गिना, ऐसे गिना, ऐसे गिना, अलग अलग तरह से मात्राएं गिनते हैं। वो उनकी अलग अलग क्रियाएं हैं। लेकिन आज तो सीधा सीधा हम चलते हैं। तो एक मात्रा से अंतिम मात्रा, अगर 3 ताल की बात कर रहे हैं तो पहली मात्रा से 16वीं मात्रा तक हम कैसे जाते हैं, उसको हम मार्ग कहते हैं। तीसरी है क्रिया, सशब्द क्रिया, निशब्द क्रिया, जिसको हम ताली और खाली कहते हैं। अब इसमें यह है कि तालियां एक साथ 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक साथ 2 खाली नहीं होनी चाहिए, ऐसा है। तो ये सशब्द और निशब्द क्रिया हो गया। फिर अंग। एक ताल जब बनता है तो उसके अंदर कई चीजें होती हैं। तो अंग जो है वो उसके विभाग हैं, उसकी ताली हैं, उसके खाली हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। मार्ग जो है विभाग, ताली, खाली से होकर पहली मात्रा से अंतिम मात्रा तक जाने का मार्ग है। उसमें हम ताली खाली देखते हैं। जैसे हम दिल्ली से निकले और हमको जयपुर जाना है तो रास्ते का हम माइलस्टोन देखते जाते हैं, मील का पत्थर देखते जाते हैं। लेकिन अंग जो है वो उसके पार्ट हैं, जहां हम स्टॉप कर सकते हैं, जहां हम चाय पी सकते हैं, जहां हम थोड़ा नाश्ता कर सकते हैं। तो अंग उसके पार्ट हैं। फिर ग्रह। ग्रह उसको कहते हैं जहां से हमारी बंदिशें समाप्त होती हैं और जहां से शुरू होती है। प्राचीन काल में ये नियम था कि बंदिश जहां से शुरू होगी वहीं पे खत्म होगी, ये उसका नियम था। अभी ऐसा नहीं है। अभी बंदिश तो ज्यादा से ज्यादातर सम से ही शुरू होती है, लेकिन खत्म कहाँ होती है। ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो सम और विषम, ये 2 रूप हैं उसके। सम पे जो बंदिश खत्म होती है उसको सम ग्रह कहते हैं, और सम से अलग जो बंदिश खत्म होती है उसको विषम ग्रह कहते हैं। तो विषम ग्रह के 2 रूप हो गए, एक अतीत, दूसरा अनागत। सम के तुरंत बाद जो बंदिश खत्म होती है, चौथाई मात्रे बाद, आधे मात्रे बाद, एक मात्रे बाद का नहीं माना जाएगा। एक मात्रे पर सम है, दूसरी मात्रे पर आपकी बंदिश आ गई और आपने कहा कि अतीत है तो नहीं चलेगा। वो दूसरा मात्रा आने के पहले जो खत्म हो जाए वो अतीत है, और सम आने के पहले जो बंदिश खत्म हो जाए वो अनागत है। कि सम आया नहीं और हमारी बंदिश का सम आ गया, ताल का सम नहीं आया। यहाँ मैं एक बात ये भी बता दूं कि मैं जो अतीत अनागत बता रहा हूं वो आज प्रचलित है, लेकिन भरतनाट्य शास्त्र में इसका उल्टा बताया गया है। सम के पहले जो बंदिश खत्म हो जाती है उसके वो अतीत कहते थे, और सम के बाद जो बंदिश खत्म होती थी उसको अनागत कहते थे भरतनाट्य शास्त्र में। लेकिन आज अनागत उसको कहते हैं जो सम के पहले खत्म हो जाती है, और अतीत उसको कहते हैं जो सम के बाद खत्म होती है। फिर जातियां हैं। अब पुराने समय में 2 ही जातियां थी, जैसा कि अभी मैंने कहा, तीस्र और चतस्र। तीस्र 3 3, 1 2 3, 1 2 3, और चतस्र 1 2 1 2 या 1 2 3 4, 1 2 3 4। बाद में तीस्र और चतस्र को मिला के एक और जाति बनी, मिश्र। दोनों को मिला दिया, मिश्रण कर दिया दोनों का, तो मिश्र जाति बन गई 7 की। फिर क्या हुआ कि इसको 7 को बीच से काटकर 5 किया गया, खंडित किया गया, और उसका नाम हुआ खंड जाति।
फिर विद्वानों ने ये डिसाइड किया कि एक जाति ऐसा बनाते हैं जिसमें सारी जातियां दिखे, तो उसको संकीर्ण जाति कह दिया, जिसमें तीसर, चतुस्र, खंड, मिश्र और ये चारों जातियां दिख जाए। अब संकीर्ण को लेकर लोगों में बहुत गलतफहमी है। संकीर्ण को लोगों ने 9 मात्रे का मान लिया, लेकिन हमारी जो जातियां हैं, ये आप ध्यान से सुनिए, हमारी जो जातियां हैं वो विभाग के अनुसार बनी है। अब दादरा ताल 6 मात्रे का है और उसका विभाग 3-3 मात्रे का है, 1 2 3 1 2 3, तब वो तीसरी जाति है। कहरवा का विभाग 4-4 मात्राओं का है, 1 2 3 4 1 2 3 4, 3 ताल का विभाग भी 4 मात्रे का है, तब वो चतस्त्र है। लेकिन एक ताल जो 12 मात्रे का है, अगर उस हिसाब से देखें तो उसको तीसरी जाति का होना चाहिए, लेकिन चूंकि एक ताल का विभाग 2-2 मात्रे का है, इसलिए उसको चतुस्त्र जाति का रखा है। झपताल का खंड 2 और 3 खंड वाला है, धीना धी धीना तीना धी धीना, तो उसको हमने खंड जाति में रखा है। लेकिन सूरताल उसका विभाग 2-2 मात्रे का है, धा धा दिन ता किट दा किट कत गदिगन, धा धा दिन ता किट दा किट कत गदिगन। तो सूरताल 10 मात्रे का होकर भी खंड जाति में नहीं है, वो चतस्त्र जाति में है। ये ध्यान रखना होगा कि 9 मात्रे का कोई भी ऐसा ताल नहीं है जिसका विभाग 2 3 4 मात्राओं का है। 9 मात्रे के जितने भी ताल हैं सबके विभाग 1-1 मात्राओं के हैं। 18 मात्रे के जितने भी ताल हैं सबके विभाग 2-2 मात्राओं के हैं, तो वो चतस्त्र जाति में आते हैं, वो संकीर्ण जाति में नहीं आते। अब अगर हम ढूंढने जाएं कि फिर संकीर्ण जाति में कौन सा ताल आएगा, तो मुझे धमार ताल याद आता है, जिसका पहला विभाग 5 मात्राओं का है, क दे ते। दूसरा विभाग 2 मात्रे का है, धा आ। तीसरा विभाग 3 मात्राओं का है, ग ते के। फिर चौथा विभाग 4 मात्राओं का है, ते ता आ। अब इसमें अगर आप देखें तो तीसर, चतस्त्र और खंड और मिश्र चारों जातियां दिख जाती हैं। तो चारों जातियां दिख जाती हैं, इसलिए धमार को संकीर्ण जाति का ताल मानना मेरे हिसाब से उचित होगा। तो क्या हो गया, काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला। कला को लोग समझते नहीं, कला के लिए कह देते हैं ये हमारा आर्ट फॉर्म है, ये हम जो गाते बजाते नाचते हैं वो कला है। वो कला नहीं है। कला ये है कि हम जब एक मात्रे का, गाने के संदर्भ में बात करूं, एक मात्रे का कोई बोल है, उसको जब हम 2 मात्रे के बराबर कर देते हैं, या उसको हम 4 मात्रे का के बराबर कर देते हैं। इसको दूसरे शब्द में कहें तो मध्य लय को जब हम विलंबित में करते हैं या अति विलंबित में करते हैं, या मध्य लय को हम द्रुत में करते हैं, अति द्रुत में करते हैं, तो उसका समय जो हम चेंज करते हैं, धा दिन दिन धा, इसको कर दिया धा दिन दिन धा, या संकीर्ण जाति उसको कहते हैं जिसमें सारी जातियां दिख जाएं, इसलिए उसको एक एंड कर लिया गया कि अब इसके बाद कोई जाति नहीं बनेगी, सारी जातियां जिसमें दिख जाएं। तीसर, चतस्त्र, खंड, मिश्र, संकीर्ण, ये करके बनाया, और जिसमें तीसर, चतस्त्र, खंड और मिश्र चारों जातियां दिख जाएं उसको संकीर्ण जाति कहेंगे। ये उसका उद्देश्य था। लेकिन अब चूंकि क्या हुआ कि तीसरे 3 मात्रे का हो गया, चतस्त्र 4 मात्रे का हो गया, खंड 5 मात्रे का हो गया, मिश्र 7 मात्रे का हो गया, तो संकीर्ण लोगों ने मान लिया कि वो 9 मात्रे का हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कॉन्सेप्ट में नहीं है। तीसरे के ताल दादरा जो है
वो उसका विभाग 3-3 मात्राओं का है, तो वो तीसरी जाति में सही उतरता है। लेकिन एक ताल 12 मात्रे का होकर भी चूंकि उसका विभाग 2-2 मात्राओं का है, तो वो तीसरी जाति में नहीं आता, वो चतुस्र जाति में आता। इसी तरह झपताल खंड जाति, अब उसका विभाग 2 और 3 मात्राओं का है, खंड का 5 होना चाहिए, तो धीना धी धीना, तो 5 का विभाग है, तो उसको मान लिया कि खंड जाति है। लेकिन अब उसी 10 मात्रे में शूलताल है, शूलताल का विभाग 2-2 मात्रे का है, धा धा दिन ता टीके दा टीके कत गदी गन, तो उसको हमने खंड में नहीं रखा है, उसको चतुस्र में रखा है। रूपक तीव्रा का विभाग 3-4-3-4 का है, दा दिन ता टीके कत गदी गन, या ती तीना दीना धीना, तो वो मिश्र में आ जाता है। लेकिन संकीर्ण में लोग 9 और 18 मात्रा को रखते हैं, ये गलत है, क्योंकि 9 मात्रे के जितने भी ताल हैं उनके विभाग 1-1 मात्राओं के हैं, और 18 मात्रे के जितने भी ताल हैं उनके विभाग 2-2 मात्राओं के हैं। तो 2 मात्रे का जिसका विभाग होगा वो चतुस्र जाति में आएगा, वो संकीर्ण जाति में नहीं आएगा। ये समझने की जरूरत है कि विभाग के आधार पर जातियों का निर्धारण हुआ है, मात्राओं के आधार पर नहीं हुआ है। अब 7 मात्रे का रूपक, 7 मात्रे का तिवरा, 14 मात्रे का दीपचंदी, ये मिश्र जाति में है, झुमरा मिश्र जाति में है, लेकिन आड़ा चौताल 14 मात्रे का वो मिश्र जाति में नहीं आएगा, वो चतुस्र जाति में आएगा, क्योंकि उसका विभाग 2-2 मात्रे का है। तो अगर हम संकीर्ण जाति का कोई ताल ढूंढते हैं तो मुझे एक ताल धमार याद आता है, जिसका पहला विभाग 5 मात्राओं का है, खंड जाति हो गया वो, क दी ट धा आ। दूसरा विभाग 2 मात्रे का है, फिर तीसरा विभाग 3 मात्रे का है, और चौथा विभाग 4 मात्रे का। तो अगर तीसरा और चौथा विभाग देख ले, ग ती ट ता आ, तो 3 और 4 मिलकर मिश्र हो जाता है। पहला का धी ट, ये खंड हो गया, और 2 और 4 मात्राओं के विभाग है, वो चतुस्र हो गए, और तीसरा विभाग जो 3 मात्राओं का है वो तीसरा हो गया। तो इसमें तीसर, चतुस्र, खंड और मिश्र, चूंकि चारों जातियां धमार में दिखती हैं, इसलिए धमार को मैं संकीर्ण जाति का ताल मानता हूं। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि विभाग के आधार पर जातियों का निर्धारण हुआ है, मात्राओं के आधार पर नहीं हुआ। अगर आप मात्रा के आधार पर करेंगे तो 9 मात्रे को आप संकीर्ण मान लेंगे, फिर 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, वो तो 99 तक चला जाएगा। कितनी जातियां आप बनाएंगे? तो संकीर्ण जाति बनाकर कलाकारों ने, विद्वानों ने ये सोचा कि अब जातियों को हम इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए संकीर्ण जाति बना दी गई। कहीं तो फुल स्टॉप लगाना होगा, कहीं तो द एंड करना होगा ना, इसलिए संकीर्ण जाति ऐसा बनाया कि जिसमें सारी जातियां दिखें। जाति हो गया। कला उसको कहते हैं कि जब हम एक मात्रा काल के बोल को, एक मात्रे का जो समय है उस बोल को हम बढ़ाते या घटाते हैं। एक मात्रा में एक बोल यानी मध्यलय, उसी को हम आधार बनाते हैं। तो मध्यलय के बोल को जब हम विलंबित करते हैं, एक मात्रे के बोल को 2 मात्रे के बराबर बनाते हैं, या अति विलंबित करते हैं, एक मात्रे के बोल को 4 मात्रे के बराबर करते हैं, या आधा करते हैं, एक मात्रे के बोल को आधे मात्रे के बराबर करते हैं, दुगुन कर देते हैं, या एक मात्रे के बोल को चौथाई मात्रे के बराबर करते हैं, चौगुन कर देते हैं। तो मात्राओं का समय जो हम घटाते बढ़ाते हैं उसको कला कहा गया है, उस काम को कला कहा गया है।
कला का अर्थ ये नहीं है कि हम तो गाना बजाना करते हैं, वो एक आर्ट फॉर्म है इसीलिए हो गया। तो कला ये है कि जो हम मात्राओं का समय घटाते बढ़ाते हैं। अब हमारे ख्याल गायन में विलंबित में लोग गाते हैं, फिर उसको अति विलंबित भी गाते हैं, फिर तराना गाते हैं तो द्रुत में गाते हैं, फिर अति द्रुत में भी जाते हैं। तो वो ठेके का जो समय बढ़ता है, मात्राओं का जो समय बढ़ता है या घटता है, उसको कला कहा गया है। फिर लय लय तो बहुत ही जरूरी है, और क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जहां लय नहीं है वहां तो प्रलय भी संभव है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन, एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी, सही घड़ी की चाल, ये सब लय के अच्छे उदाहरण हैं। और आप देखिए ना कि हमारी पृथ्वी भी अपनी धुरी पर एक निश्चित लय में घूमती है, एक निश्चित गति में घूमती है। और इसीलिए हमारे पंडितों ने, ज्योतिषियों ने पहले बता देते हैं कि उस दिन इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर सूर्यास्त होगा, इतने बजकर इतने मिनट पर इतने सेकंड पर सूर्योदय होगा। इसलिए कि वो पृथ्वी की गति को वो समझते हैं कि किस गति में पृथ्वी घूम रही है और कितनी देर में ये परिक्रमा वो पूरी कर लेगी। सही लय के कारण ही हमारे ताल अपना आवर्तन सही समय पर शुरू कर पाते हैं, सही समय पर समाप्त होते हैं। तो लय ये है। इसके 3 मूल रूप हैं, विलंबित, मध्य, द्रुत। पुराने समय में इसको नापने के लिए अलग-अलग साधन होते थे, लेकिन आजकल मतलब एक जनरल ये बन गया है, एक स्टैंडर्ड टाइम बन गया है कि 1 सेकंड का 1 मात्रा, वो मध्य लय है। आमतौर पर ऐसा कहा जाता है। 1 सेकंड का 1 मात्रा वो मध्य लय है। उसको अगर कम कर दिया, 1 मात्रा 2 सेकंड का हो गया तो विलंबित हो गया। वो 4 सेकंड का हो गया तो अति विलंबित हो गया। इसी तरह अगर 1 सेकंड में 2 बोल दिया, धा दिन, तो वो द्रुत लय हो गया। तो इस तरह से विलंबित, मध्य, द्रुत, इस तरह से 2-3 लय हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ, जैसे हम अगर ऋतुओं की बात करें कि हमारे यहाँ कितनी ऋतुएं हैं, तो लोग बोलते हैं 3 है, जाड़ा, गर्मी, बरसात। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो हमारे यहाँ 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। शरद भी है, शिशिर भी है, और इस तरह से 2-2 महीने पर जब हल्का-हल्का मौसम बदलता है, हमारे यहाँ बसंत भी एक ऋतु है, हेमंत भी एक ऋतु है। तो लेकिन हम मोटे तौर पर 3 ऋतु मान लेते हैं, मोटे तौर पर। उसी तरह मुझे लगता है कि मोटे तौर पर 3 लय मान लिए गए हैं। लेकिन अक्सर आप ही बताइए, जब आप डांस शुरू करते हैं, थाट कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, जब आप तोड़ा नाचने के लिए करते हैं तो लय थोड़ी सी आप बढ़ाते हैं। वो एकदम से मध्य लय नहीं होता है, वो विलंबित से मध्य के बीच की एक लय होती है। या बड़ा ख्याल जब आदमी गाता है तो आलाप गाया, बंदिश गाया, उसको जब तान करनी होती है तो थोड़ी सी लय वो बढ़ाते हैं, वो भी एक लय होती है। तो विलंबित और मध्य के बीच में भी एक लय है, मध्य और द्रुत के बीच में भी एक लय है, और फिर द्रुत के बाद अति द्रुत तो है ही, वो तो ऑलरेडी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ 6 लय हैं। एक विलंबित, दूसरा विलंबित मध्य, दोनों को जोड़ता हुआ, फिर तीसरा मध्य, चौथा मध्य द्रुत, दोनों को जोड़ता हुआ, फिर द्रुत, और उसके बाद अति द्रुत। तो इस तरह से हमारे यहाँ कुल 6 लय हैं, जिनमें से मोटे तौर पर हम 3 को मान्यता देते हैं, विलंबित, मध्य, द्रुत। लय हो गया यति। ताल, अच्छा एक बात मैं और भी बताता चलूं कि मैं जो बातें आज कर रहा हूं वो तबला, पखावज और कथक नृत्य, इन तीनों की दृष्टि से मैं कर रहा हूं। और भरतनाट्य शास्त्र में इनके विषय में जो विवेचना की गई है, जो विवरण दिया गया है, वो नाटकों के संगीत के संदर्भ में दिया गया है। तो जैसे मैंने ग्रह की बात की कि अतीत अनागत की बात की, अब अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, अगर आप 11वीं मात्रा से कोई बंदिश शुरू करते हैं गाने की,
तो 11वीं मात्रा से जो शुरू करेंगे तो उसको लाके खत्म भी 10 मात्रा पर लोग करते हैं, क्योंकि 11वीं मात्रा से अगली लाइन शुरू होती है। तो इसलिए वहां यह था कि बंदिश जहां से शुरू होगी वहीं खत्म होगी। लेकिन हमारी बंदिशें कथक डांस की, तबले की या पखावज की तो सम से ही शुरू होती है। तो यति में भी यही है कि बंदिश एक मात्रा से शुरू होकर अपने अंतिम मात्रा तक किस तरह से जाती है, उसमें लयों में क्या क्या बदलाव होते हैं, उसके हिसाब से यति का निर्माण हुआ। तो उसकी पहली यति तो समा है। समा का मतलब समान, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जिस लय में बंदिश शुरू हुई उस लय में खत्म हो गई, सारे तोड़े टुकड़े तिहाइयां सब उसमें आ जाती है। दूसरी बंदिश जो होती है उसको श्रोतावहा या श्रोता गता कहते हैं। स्रोत मतलब नदी का स्रोत, नदी जहां से निकलती है। अब नदी जहां से निकलती है उस जगह को आप देखें तो वो जगह बहुत छोटी होती है, और वो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है उसका पार्ट चौड़ा होता जाता है। तो जहां जगह कम है वहां कम बोल, और फिर जैसे जैसे उसका पार्ट चौड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके बोल बढ़ते जाते हैं। तो ये श्रोतागता है। जैसे एक छोटा सा बोल याद करने की कोशिश करता हूं। धा ते ते धा ग ते। फिर से धा ते धा ग ते घेरा आना कत ग दी गन धा आदि इंता क ते कत ग दी गन न ग ते द ग ते कत ग दी गन दे नगे न कत कड़ान कत गदि गन चट कत गदि गन नग चट कत गदि गन कर चट गदि गन दा कत गदि दा कर चट गदि गन दा कत गदि गन दा कर चट गदि गन दा कत गदि गन दा। तो ये कम से शुरू होकर तेज तक जा रहा है। तो इसको मतलब श्रोता बहा या श्रोता गता दोनों नाम कहते हैं। ये लय यति है, मतलब लय के हिसाब से हमने इसको दिखा दिया। कुछ होती है कि लय वही है लेकिन बोल ऐसे दिखाते हैं, जैसे तिटकत गदिगन था एक बोल है, कंप्लीट बोल है तिटकत गदिगन था। तो उसको जैसे शुरू किया हमने गदिगन धा कत गदिगन धा तिटकत गदिगन धा धा तिटकत गदिगन धा, ये कम से ज्यादा की ओर आ रहा है। गदिगन धा कत गदिगन धा तिटकत गदिगन धा धा तिटकत गदिगन धा। लय वही है, बोल चेंज हो रहा है, बोल आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसको बोल यति कहते हैं। गदिगन धा कत गदिगन धा तिटकत गदिगन धा धा तिटकत गदिगन धा गदिगन धा कत गदिगन धा तिटकत गदिगन धा धा तिटकत गदिगन धा गदिगन धा कत गदिगन धा तिटकत गदिगन धा धा तिटकत गदिगन धा। तो इस तरह से श्रोतागत। और तीसरा है गोपुच्छा, इसका ठीक उल्टा। शुरू में 3 ही यति थे, समा, श्रोतागता या श्रोतावहा और गोपुच्छा। वो इसका ठीक उल्टा है। गाय की पूंछ देखिए, वो ऊपर से मोटी होती है और धीरे धीरे पतली होती हुई चली आती है। तो बोल कम होता हुआ है। तेक्राम धा और धा। तो ये गोपुच्छा का हो गया, बड़ा से छोटा होता हुआ आ रहा है। तो अच्छा, उसके बाद आ जाता है मृदंगा। मृदंगा मतलब ये इसको बाद में जोड़ा गया, मृदंगा यति को बाद में जोड़ा गया कि मृदंग के आकार का दाहिने तरफ से चलते हैं। दाहिना भाग जो है पखावज का वो पतला होता है, उसके बाद बीच में वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, और फिर लेफ्ट की तरफ जब जाते हैं
तो फिर वो पतला हो जाता है, लेकिन वो दाहिने की तरफ पतला नहीं होता, दाहिने से थोड़ा मोटा होता है। तो ठा से कोई बोल शुरू करें, चौगुन पर जाए और फिर दुगुन पे खत्म कर दें या तिगुन पे खत्म कर दें। ऐसे जो बोल है उनको मृदंगा के अनुरूप हम मृदंगा के अंतर्गत रखते हैं। फिर इसी का उल्टा लोगों ने किया, उसको डमरू या पिपीलिका कहा। पिपीलिका मतलब चींटी। तो चींटी का आगे का और पीछे का हिस्सा हेवी होता है और बीच का हिस्सा जो है पतला होता है। जिस तरह डमरू में होता है कि आगे का और पीछे का हिस्सा बड़ा होता है और बीच में पतला होता है। तो शुरू में और अंत में दुगुन के बोल हों और बीच में ठा के बोल हों, या शुरू और अंत में चौगुन के बोल हों, बीच में दुगुन के बोल हों या ठा के बोल हों, इस तरह से मृदंगा यति हो जाता है। अब प्रस्तार। प्रस्तार का क्या अर्थ है कि पुराने समय में जैसे हमारे कर्नाटक म्यूजिक में 7 ताले हैं, कुल 7 ताले हैं, लेकिन उनका विस्तार करके उनको 35 ताल बनाया गया, लघु की मात्रा चेंज करके। फिर उनको 135 तालों में कन्वर्ट किया गया। लेकिन वो तो हो गया। अब ये सब न तो दक्षिण भारत में अब आजकल उतना प्रचलित है और न तो उत्तर भारत में प्रचलित है। तो उत्तर भारत में विद्वानों ने ये मानने का निर्देश दिया है कि जिस तरह से हम किसी भी एक बोल को, कोई कायदा है, कोई पेशकार है, कोई लड़ी है, कोई बांट है, उसको लेकर हम जिस तरह से पलटों के माध्यम से उसका विविध विस्तार करते हैं, उस विस्तार करने की क्रिया को ही अब प्रस्तार मान लेना चाहिए। तो ये हमारी हो गई ना, काल, मार्ग, क्रियांग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्तार, चारों हो गए। अब अवसर मैं आपके लिए स्पेशल एक बात कहना चाहता हूं। ये एडिट करने में इसको एडिट मत कीजिएगा, इसको जरूर रखिएगा जो मैं कह रहा हूं कि ताल के 10 प्राण का कॉन्सेप्ट जब बना तब कम से कम 2100 साल पहले की बात है, क्योंकि भरतनाट्य शास्त्र में उसका उल्लेख है और भरतनाट्य शास्त्र ईशा के पहले लिखा गया था। और ताल के 10 प्राण पर मुझे बोलने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो आप 10-20 रुपए की कोई भी किताब आप खरीद लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने जब सुना कि मौसमी अफसर की शिष्या है, शोभना जी की शिष्या है और वो मुझसे कह रही है ताल के 10 प्राण, तो मैंने बोलना कहा कि ठीक है, मैं इस पर बोलूंगा। अब मैं जो आपको बात कह रहा हूं, एक तो ये कि प्राण नाम नहीं होने चाहिए, प्राण एक ही होता है। ताल के 10 तत्व उसका नाम कहिए। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि 10 नहीं 11 होने चाहिए। जिस समय भरतनाट्य शास्त्र लिखा गया उस समय हमारे यहाँ मार्ग तालों का प्रचलन, और मार्ग तालों में ठेके नहीं होते थे। ठेकों का प्रचलन हमारे यहाँ 13वीं शताब्दी से शुरू हुआ, जब से ध्रुपद गायन का थोड़ा थोड़ा विस्तार शुरू हुआ। 15वीं शताब्दी में ध्रुपद आया, वो भूल जाइए, वो किताबी बातें हैं। मानसिंह तोमर के समय में ध्रुपद ऑलरेडी प्रचलित हो चुका था। मानसिंह तोमर ने ध्रुपद का आविष्कार नहीं किया, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, समझे ना, वो बातें आप भूल जाइए। तो और उस समय हमारे यहाँ छंदों का प्रचलन था। ताल भी जो होते थे वो छंद के अनुरूप चलते थे। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन, गिनिए कितने मात्रे हुए। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन, 16 मात्रा हुए। हरण भव भय दारुणम, 12 मात्रे हुए। श्री को माइनस नहीं करना है, श्री से जोड़ना है। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन, 16 मात्रा। हरण भव भय दारुणम। तो हर मात्रे की, हर श्लोक का हर चरण अलग अलग हो रहा है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, 18 मात्रा। या शुभ्र वस्त्रावृता, 12 मात्रा। तो
श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम। इस 28 मात्रे को जब तालों में बांधना हुआ तो रूपक में बांध दिया, श्री को अलग किया। रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र। तो उस समय तक छंदों का प्रचलन था, ताल का प्रचलन नहीं था। और ताल जो थे उनके ठेके का प्रचलन नहीं था। पंचमार्ग ताल थे, मार्गी ताल थे 5, लेकिन उनके ठेकों का प्रचलन नहीं था। यहाँ तक कि संगीत रत्नाकर में आचार्य सारंग देव ने जिन 120 तालों का उल्लेख किया है उनमें भी ठेकों का प्रचलन, ठेकों का नाम नहीं है, केवल ताल का स्वरूप होते हैं। दक्षिण भारत में आज भी ठेके नहीं है, वेस्टर्न म्यूजिक में आज भी ठेके नहीं है। आप तो घूम कर आते हैं, आप तो देश विदेश घूम रहे हैं। हमारे उत्तर भारत में ठेकों की पहचान है, ठेकों से तालों को पहचाना जाता है। अगर धीना धी दीना तीना धी दीना कह दीजिए तो कश्मीर से कन्याकुमारी और गुड़गांव से पुणे, अमेरिका, सब जगह झपताल लोग उसको कह देंगे। तो अब हमारे तालों की एक पहचान ठेके भी हो गए, तो उसमें 11वें तत्व ठेके का भी जुड़ाव होना चाहिए। ये मेरा एक मत है, इसको आप लोग जरूर वहां मतलब डालिए और इस बात पे चर्चा आप कीजिए।